Welcome to Just a Conversation on very special day. As you all know, today is International Women's Day, and we could not think of any better women than Shweta Tiwari as our guest for International Women's Day. She is gorgeous, she's stunning, she's accomplished, and above all, a voice not just for herself, but several women universally. We are absolutely honored to have her on our show as a guest today. And we thank you all our viewers, for your support. So let's just dive in. We are absolutely honored and thrilled to have you on Just a Conversation. Thank you for accepting our invitation. Thank you so much, Anjali. I'm so excited to be here on this show because I'm a big fan of this show. I watch all the episodes and everything that you guys do. You guys are doing a great job. जो आपके जो topic होते हैं, जो conversations होते हैं, they're really very good. So yeah, I regularly watch your show. Coming from you means the world to us. Thank you so much. Thank you. So, Shweta, as you know, today is International Women's Day, and I personally believe that no days as Women's Day, every day we should celebrate ourselves. Absolutely, absolutely. These days, women are doing so much. These days, yeah. Since I remember, it's सालों साल से औरतों के बारे में जो बात की जाती है, जिस तरह की औरतें चली आ रही हैं, जिस तरह उनके काम चली आ रहे हैं, जिस तरह की वो कारनामे कर चुकी हैं. Every day is a Women's Day. So you're right. We should celebrate it every day, and others should celebrate it more than others. I think women needs to celebrate themselves and believe in themselves. ये जरूरी है. So Shweta, when we talk about women empowerment, what do you think? How far we have come in terms of women? I don't think Anjali, we've gone anywhere when it comes to women empowerment in India, because you know, I still see women. They're educated, they're working, they're doing everything that a man can do. But when it comes to independence, actual independence, when they have to decide, take decisions for themselves, when they have to take a stand, they're still scared. They're not fully prepared. They don't know what to do. Earning money and going out morning to evening is not women empowerment. They need to stand for themselves. They need to destroy the things that are destroying them. So I think we've not gone anywhere. We're just starting, but one day we will reach there, I'm sure. Just cross to that, and that's pretty long. No, I couldn't agree with you more. I think we have a long way to go. So my question for you, Shweta, is that in the early stages of your career, do you ever recall being ill-treated by, let's say, a co-star, a producer, a director, or anyone when you had just began your career? Yes. When I started my career, more than anywhere else, I think in Kasauti itself, when I started few years, it was producers were great. Ekta Kapoor and Shobha auntie, Jitu uncle, they were great. Producers were great, but people around me, because I was very, very new, it was absolutely, I didn't know how to, really talk. I was very naive and very raw. So people did take me for a ride, and the way they used to behave. मैं single out हो जाती थी. They used to be in the group, but for 2 years, after 2 years, I learned how to tackle, and I learned how to actually deal with these kind of people, and now I'm a pro. No one can mess with you anymore. No one, not anymore. Excellent. Yes, you are beyond accomplished, Shweta. And when you talk about Kasauti, I am a huge, huge, huge fan. So, Sweetie, when I'm a fan of my show Kasauti, वैसा show अब कभी नहीं बना और ना बनेगा. And self-love is very important. We all should admire our work. So Shweta, my next question to you is, when we talk about equal pay, not just in Hindi film industry or American film industry, globally, what are your views on equal pay for women, genders, not just men and women? I think talent should get paid, not the gender. If you're talented and if you're good at your work that you're doing, you should get paid what a talent should get paid. ऐसा नहीं कि ये लड़की है तो give her less payment and the other male को ज़्यादा दो. No, I think worldwide हर जगह talent should get paid. The salary should go to the talent, not to the gender. That's what I believe. I agree. I think you should be paid on your merit.
and how your performance is. I agree with that. Yes, exactly. Because that's what I said. Even today, like in our industry, today gender is not important. The talent is. If you are talented enough to pull a show, to pull a movie, if people are coming, if you can pull crowd towards you, you will get paid highest. Right. अभी भी थोड़ा सा hierarchy है, लेकिन I think it's going to go away very soon because there are so many ladies that are doing so well now, and on their terms they're working. They're so talented, and I'm sure even industry is changing and world will change. So, Shweta, what are your, like, I remember जब हम पाकिस्तान में छोटे थे, तो मेरी मम्मी जो है, मैं धूप में बहुत जाती थी, धूप में बहुत खेलती थी, तो इतनी काली हो जाती थी, क्रिकेट खेलती थी, मैं पूरी टॉम बॉय थी। तो जब मैं घर में वापस आती थी तो मम्मी जो है कहती थी, इतनी काली है, कौन शादी करेगा, फेयर एंड लवली क्रीम पूरे मेरे मुंह पे फेयर एंड लवली क्रीम लगाती थी। अब वो जमाना बदल गया है और वो क्रीम से मुझे इतनी नफरत है अभी तक, और मैं हैरान हूं कि वो क्रीम अभी तक बिजनेस में कैसे है, और अब तो फेयर एंड हैंडसम भी आ गया है। तो आपका क्या ओपिनियन है ये फेयर एंड लवली, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में? मुझे तो इससे शदीद नफरत है। मुझे भी नफरत है, इसलिए भी क्योंकि आज तक भी आप सही कह रहे हैं कि हाँ, तो मुझे भी नफरत है इस बात से, लेकिन अभी वो ग्लो एंड लवली हो चुका है, फेयर एंड लवली से हटाकर, क्योंकि अब लोगों ने ऑब्जेक्शन लेना शुरू किया है, लोगों ने बोलना शुरू किया है कि क्यों ये रेसिज्म क्यों है, कि फेयर एंड लवली क्या होता है। सो नाउ दे हैव चेंज्ड द नेम, इट्स ग्लो एंड लवली, ऐसे ऐसा कुछ नाम हो गया है उसका, तो चेंज हुआ है। कॉन्सेप्ट तो सेम है, नाम बदल, मेरा ये बेटा हुआ था, कॉन्सेप्ट तो सेम, करेक्ट, हाँ, नाम कॉन्सेप्ट सेम है। मैं आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, जब बच्चे पैदा होते हैं, जिस बाहर आते हैं, वो थोड़े से सांवले होते हैं। सो मैं थोड़ी सांवली हूँ, तो जब बेबी मेरा बाहर आया, सिजेरियन था, फादर वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी, सर के पास, ही सेज, अरे यार ये तो तुम्हारी तरह काला निकला। तो आई सेड, सो व्हाट, काला निकला तो क्या हुआ? Horrible, ठीक है। और वहां पे हमारी डॉक्टर चेरी जो वहां पे थी, जो हमारी गायनी, तो बोलते अरे तो क्या हुआ, टैलेंटेड निकलेगा अगर श्वेता की तरह तो भी बहुत बड़ी बात है। दैट्स व्हाट कहते हैं, अभी वो निकला तो टैलेंटेड भी निकलेगा श्वेता की तरह। तो कहते हैं आई वाज जोकिंग, बट फर्स्ट वर्ड जो आया वो यही आया, मतलब कलर। ये कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि हम प्रार्थना करते हैं कि जब औरतें माँ बनती हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो एक ही प्रार्थना होती है कि बच्चा हेल्थी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे कैसा भी हो, बस हेल्थी हो, सेहतमंद हो। ये हर माँ की प्रार्थना होती है, राइट? तो इट्स पर उसके बाद प्यार की कमी नहीं रही बच्चे के लिए, लेकिन रंग का पहला था कि गोरा निकले। और आज भी जब लोग बात करते हैं ना, लोग यही कहते हैं कि यार बड़ा गोरा चिट्टा बच्चा पैदा किया है, बड़ा पैदा होते ही, मतलब बाहर आया नहीं आया, उस बच्चे को नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, उस बच्चे को नहीं पता कि उसका कलर क्या है, वो इंसान है कि बकरी है, उसको अपना कुछ भी नहीं पता। उस बच्चे को पैदा होते ही काला या गोरा में देखना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पैदाइशी की बात है। फिर आगे की बात है कि लोग देखने जाते हैं तो पहले कहते हैं ये तो आलू की तरह भुनी हुई, छीलना भूल गए लोग, मतलब यू नो द वे दे स्पीक, राइट, कि इतनी काली है कि आलू को जैसे भून के काला कर देते हैं, आलू की तरह भुनी हुई है, छीली नहीं गई है। Oh my God. This is how people talk in India till today, and I'm surprised. Even when people meet me, my fans, कई बार होता है कि they love me, I know they love me, पर उनके साथ कोई एक ऐसा होता है जो हमेशा मुझसे ये कह देता है कि अरे आप स्क्रीन पे लगा हमें आप बहुत गोरी हैं, पर इतनी गोरी है नहीं आप। मैंने कहा तो क्या हुआ, स्क्रीन पे फिर भी मैं ही दिखती हूँ। टैलेंट का होना कितना जरूरी है। सोमी, यू रिमेम्बर व्हेन द डे वी अनाउंस्ड, हमारे फोन नहीं रुके श्वेता, इतने मैसेजेस आपके फैंस के हमें आ रहे कि they were thanking us to bringing you on this show. तो आपका talent is like famous universally, not just in India. This is commendable. Thank you. मगर मैं और अंजलि हम लोग उम्मीद करते हैं, और मुझे यकीन है श्वेता आप भी यही उम्मीद रखती हैं कि एक ना एक दिन ये फेयर एंड लवली एंड ग्लो एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम ये पूरा बैन हो जाएगा, क्योंकि लोगों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग अब समझ रहे हैं, अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कलर
टेम्पररी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है, अगर एक्टर्स जो हैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जैसे कटरीना कैफ ने मना कर दिया करने के लिए कैंपेन फेयर एंड लवली की, क्योंकि उसने कह रही हूँ लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग समझ रहे हैं दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट गुड। जो ये किया जा रहा है लोगों के साथ, ये जो रेसिज्म शुरू हो रही है, दिस इज नॉट रियली नॉट राइट। सोसाइटी को सबसे पहले ये चेंज करने की जरूरत है, और सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है अपने घर से, अपने घर में एक चेंज करने की जरूरत है, जहां पर लोग सुंदर वाली लड़की को बाहर चाय लेके भेजते हैं कि बेटा जाओ चाय देकर आओ, ठीक है, क्योंकि सांवली वाली को बोलते बैठ जा। तो ये अभी जब तक ये चेंज नहीं होगा ना घर में, हम सेलिब्रिटीज कितना भी मना करें ना हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये घरों में चेंज होना जरूरी है, और घरों तक जाने के लिए ये बात को बहुत टाइम लगेगा। बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ कटरीना कैफ, शी डिड दैट बिकॉज somebody needs to take a stand. अब शुरुआत हुई है ना, अब हर कोई She was the first actor to take a stand against, and she said, no, this is racism, I'm not doing this campaign. And I was so proud of her कि finally चलो किसी ने तो आवाज उठाई इसके खिलाफ। किसी ने आवाज उठाई, ये बहुत अच्छी बात है, और आई एम श्योर धीरे धीरे लोग उठाएंगे और लोगों में धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू होगी, आई एम श्योर। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अब अपना रंग बदल के स्क्रीन के सामने नहीं आती, और ये भी एक तरह से जो ऑडियंस है उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि रंग मायने नहीं रखता, आपका टैलेंट मायने रखता है। तो वी रियली होप कि ये चीजें जल्दी से चेंज हो और लोगों की देखने का नजरिया जो है वो बदले। आपको एक बात बताती हूँ, अभी किसी ने कुछ महीनों पहले मुझसे किसी ने कहा है कि आपने क्या ग्लूटा के बारे में नहीं सुना? मैंने कहा ग्लूटा क्या होता है? तो बोलते ग्लूटा होता है वो आईवी इंजेक्शंस होते हैं, और कोई एक्टर ही था, आईवी इंजेक्शंस होते हैं और कोई टैबलेट्स होते हैं, आप ले लो, इट्स फॉर द इट विल मेक यू फेयर। सो आई सेड, मैंने अपनी 20 साल निकाल दिए, 22 साल निकाल दिए इस इंडस्ट्री में विद दिस कलर, अब I don't want to be fair. I'm fine. I don't need gluta. So they said, I think you should try. Everybody should try. It's for, you know, for fairer complexion and you look prettier and everything. I said, मुझे जो दिखना था मैं दिख गई. I am not going out for a gluta. So now there are products outside in the market जो आपको गोरा बनाते हैं, जो आप लोग जाके उनपे हजारों लाखों खर्चा करते हैं to become fairer. तो ये mentality कहाँ जा रही है? कहीं नहीं जा रही, नहीं है। ये तो बैकवर्ड जा रही है, पीछे जा रही है। आप लोगों को बोले मैं लवली हूँ, मैं लवली से बहुत खुश हूँ, मुझे फेयर की जरूरत नहीं। We feel sorry to find these people, like that's sad, really sad. It's unbelievable. तो श्वेता, अभी इंडस्ट्री में कुछ टाइम पहले ये बहुत मी टू मूवमेंट चला, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी बहुत ये मी टू मूवमेंट का एक बूम आया और फिर जस्ट फिजल्ड ऑफ। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मी टू मूवमेंट? देखिए, जब ये शुरू हुआ होगा, मुझे लगता है जब ये शुरू हुआ होगा तो एक बहुत जेन्युइन इंटेंशन के साथ शुरू हुआ होगा, जहां पर किसी ने वाकई कभी सताया गया होगा, जिसको आवाज उठाने की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन वो तब नहीं बोल पाया, और फिर कभी तो हिम्मत आई और मीटू में उसने हिम्मत जुटाकर बात की और ये बात बाहर आई। लेकिन इसके बाद हर चीज ही मीटू हो गया, हर चीज के लिए। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज मैं मानती हूँ होता है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज होता है जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे से सेक्सुअली बात करते हैं, अगर दोनों कंफर्टेबल हैं, दे टॉकिंग विद फन विद एवरीथिंग इज फाइन, देन दैट इज नॉट अ सेक्सुअल अब्यूज। कल को तुम जाके बोलो दैट डे वी वर हैविंग फन एंड यू स्पोक अबाउट दैट सेक्सुअल थिंग टू मी, दैट इज मी टू, दैट इज नॉट मी टू। बट अगर एक बंदा दूसरे से सेक्सुअल बातें करता है और दूसरा अनकंफर्टेबल होता है और दूसरा कहता है डू नॉट स्पीक टू मी अबाउट दिस, और हो सकता है उस बंदे की ओहदा ज्यादा है और एक दूसरा जो रोकना चाह रहा है उसका ओहदा नहीं है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो बाद में बोला ठीक है, लेकिन उसको सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अगर जैसे घरों में, ठीक है, सो कॉल्ड फादर्स, सो कॉल्ड रिलेटिव्स किसी बच्ची से किसी से सेक्सुअल बातें करते हैं, ठीक है, और जब वो पर्टिकुलर बंदा जब कह देता है कि प्लीज आई एम नॉट कंफर्टेबल, डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस, लेकिन वो फिर भी अरे आई एम द फादर, आई एम सो एंड सो, मैं तो उसके बारे में बात करूंगा बिकॉज आई नीड टू टेल यू अबाउट दिस, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज। यू कैन नॉट स्पीक, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज कि मैं फैमिली मेंबर हूं, मैं तुमसे नहीं, यू कांट। इफ
that child, that person is uncomfortable about something, about you speaking to that person about whatever, do not speak to that person. Right. Let a lady take a lead. Tell somebody else in the house, to your mother, to your sister, to somebody else who can go and speak to that child if you're really concerned. You cannot ask a girl about the virginity. You cannot ask a girl about their sexual encounters. You cannot ask about anything to a person if that girl is getting uncomfortable. That is sexual abuse. Absolutely. So if that is what is happening with you, that's a Me Too. You can complain. But if you guys are having fun talking about some sexual joke, talking about something double meaning things, and later on when suddenly you realize, oh, that day we were speaking, was he trying to hint, or was he trying to say something to me? So yeah, that's a Me Too. You go and write about it. That is not good. So that's where this Me Too went. I think that's what I feel about it. Yeah, and it is happening like around us, behind the doors. We just need to open our eyes and see कि हर घर में हर दूसरे corner पे हो रहा है, and then women are staying quiet. It's not acceptable if women is not comfortable. उनके comfort zone में नहीं है, so no one is supposed to talk to them. Speak to them about this. No way. Yeah, totally agree. हाँ, मगर तनुश्री दत्ता ने ये शुरू किया था ना इंडिया में. उसने पहली एक्ट्रेस वो थी ना जिसने वोकलाइज किया था. उसके साथ जो हुआ था नाना पाटेकर के साथ सेट पे, मेरे ख्याल में उसने पहली एक्ट्रेस वो थी. आई थिंक सो. मुझे भी इसका कुछ खास आइडिया नहीं है कि पहली थी कि नहीं थी, लेकिन इस बारे में बात बहुत ज्यादा हुई थी. बहुत बढ़ गई थी. बहुत सारी चीजें हुई थी. लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा. मैं ये नहीं कहती कि उसने सही कहा या गलत कहा. मैं वहां नहीं थी. आई एम नोबडी टू जज. ओके, लेकिन मेरे ख्याल से उन दोनों को अलग अलग बिठाकर करने के बजाय somebody should have taken a step to make them, sit together and find out. हो सकता है उन्होंने नाना पाटेकर जी ने ना किया हो सकता है कि इसको गलतफहमी हुई हो सकता है. लेकिन अगर उसने इतनी बड़ी बात बोली तो हो सकता है ना उसने कुछ फील किया हो, तभी तो बोला है. Definitely. I'm 100% with Tanushri on this. 100% with. Yes. मैं ये नहीं मानती कि उसको कुछ भी नहीं फील हुआ और उसने जाके बोल दिया. उसको कुछ फील हुआ है. अब सामने वाले का इंटेंशन क्या था वो मैं नहीं जानती, कि वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है. बट एक क्लैरिटी की जरूरत थी मेरे ख्याल से. इसको एक क्लैरिटी चाहिए थी. आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम और आई एम नॉट ब्लेमिंग हर. आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि उसने कुछ फील किया. इनका इंटेंशन जो भी था, देयर शुड हैव बीन अ क्लैरिटी. आई एम नॉट सेइंग ही इज अ रेपिस्ट, बट देयर हैज टू बी समथिंग. कुछ तो है. There's no smoke without fire. Something definitely happened. Yes. बिना वजह के आके सामने कैमरा के स्क्रीन के बिना वजह के कुछ भी नहीं बोलेगी. Definitely. So he said it right that there's no smoke. Yeah. And of course, और उसके बाद अगर ऐसा भी हुआ तो उसको बिठा के कोई पूछता कि ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि उन्होंने किया, या उनसे कोई पूछता कि क्या आपने ऐसा किया तो आप मतलब इंटेंशनल था कि नहीं था, मतलब उसने बुरा फील किया, क्या उनको सॉरी बोलना चाहिए कि अगर आपको ऐसे फील हुआ तो आई एम सॉरी यू फेल्ट इट दैट वे, बट आई डोंट माय इंटेंशन वाज नॉट दैट. ये भी हो सकता था. देन इसको इतना जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन उड़ाया गया, इतनी जो बातें हुई गई, इतना कुछ हुआ, मेरे ख्याल से हो सकता है दोनों भी इनोसेंट हो और दोनों भी अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ तो फॉर श्योर था. अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा बहुत सीरियस हो गया, थोड़ा लाइटर नोट पे मेरा आपसे सवाल है कि आपकी फॉन्डेस्ट मेमोरीज सेट पे क्या है? 2-3 बताइए हमें जो आप बहुत मजा आया. कोई प्रैंक हुआ आपके ऊपर, किसी ने मजाक मस्ती की, कोई तो मेमोरीज होंगी. पता है बहुत लंबा करियर में हम डेली सोप करते हैं. डेली सोप में रोज आप घर से ज्यादा सेट पे रहते हैं, तो हर चीज जो वहां होती है ना आपकी एक मेमोरी हो जाती है. मजाक मस्ती. हाँ, मजाक मस्ती चलती रहती है. ऐसी मुझे कोई पर्टिकुलर चीज तो याद नहीं, सिवाय इसके कि जब मैं पहली बार एकता से मिलने गई थी, when Ekta called me for Kasauti, when she was planning to finalize me, when she had liked me already. I didn't know that she gave me 2 other shows before Kasauti just to see whether I can act or not. Okay, because she had liked me in some other show which was on some other channel, and she saw me there and she said, okay,
I want this girl, so call this girl. When I came, she didn't meet me. Her creatives met. They gave me other shows. I started working with them. Suddenly one day, and my daughter was very, very young. She was few months old. So when in the night, I remember I went to meet her at 2:30 in the night. Yes. So when I went to meet her, she was in her cabin, and सबने मुझे डरा दिया था, और मैं लेट हो जाती थी सेट पे, आज तक भी लेट हो जाती हूँ. तब तो बहुत ही छोटी थी मेरी बच्ची, और मुझे हमेशा 1.5 घंटे दूर रहती थी मैं उस लोकेशन से. ट्रैफिक में तो 2-2.5 घंटे हो जाते थे, सो मैं लेट आती थी. So everybody said Ekta is very angry and she wants to meet you because you come late, and she's very, very upset. I don't know what she's going to do. And I was very young. I was just 20 years old, and I didn't know what to do, and I was scared of Ekta. Now I know that she's a sweetheart, but then to Ekta Kapoor, oh my God. So when I went inside her cabin, she was just lying down on a sofa like this, and she said, "So you girl, you come late on my sets? Why come late?" So I got scared. He said, "I'm so sorry. I have a small daughter, and I pack up very late. I pack up at 2 o'clock in the night. By the time I reach home, sleep, meet with my daughter, and then come back in the morning at 9. So at times I get late and I come at 10:30. पहले तो उन्होंने बड़ी आंखें दिलाई, बड़ी बातें की. उसके 5-10 मिनट बाद she started laughing like how. और उनको हंसता देख के मेरा रिलीफ जो था कि she was joking, she was not serious, मुझे रोना आ गया. और मुझे रोना आ गया. मैंने कहा, I really got scared. I thought, you're going to shout at me. You might throw me out of the show and, all that. She said, "No, not at all. I'm calling you for this show and I'm planning to take you for lead. But you need to come on time." So I said, "I will try to come on time. I don't do it purposely, but I don't know why I get late, but I will try." So she gave me a room where I could keep my daughter with me. But later on, it was so far, and I used to shoot for so many hours. I remember I used to shoot for 72 hours. Not only me, everybody in the show used to shoot for 72 hours, more than that, including Ekta. She used to be awake 4 days non-stop because she had so many shows going on. There were shows, 22 shows on air. So she had such a big, this thing to, handle. So at that point, so yeah, I really struggled a lot with whole thing, but yeah, that was the biggest prank that I remember. I remember Ekta when I went to India in 1991, when I was 16 years old. I used to go to Mangla Hall. Juhu mein, I think Mangla Hall hua karta tha. वहाँ वो आती थी, and she was the biggest jokester, the biggest prankster. She used to make everyone laugh, and she was the sweetest girl ever. And I mean, अब तो मुझे वापस घर आए हुए 20-21 साल हो गए Miami आए हुए, मगर वो इतनी sweet थी. और जीतू जी के साथ तो मैंने काम किया है. He's so sweet, and the whole family, Shobha, the whole family, everyone, they're very sweet people. Everybody's very sweet. I remember once, there was I was shooting, Sankraman RA Mill Colony mein tha. So I was shooting. I told them that, my out time is at 9 o'clock in the evening. So I need to go, and please let me go. So they said, no, there's a telecast. There's so many scenes left. You cannot go. You have to shoot. तो मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे तो जाना है. तो मुझे, I remember, शुभा आंटी का फोन आया. तो शुभा आंटी का फोन आया और मैंने फोन उठाया तो शुभा आंटी ने बोला, "You leaving my set? How can you leave my set? There's so much is left. You have to work. You cannot go. And why are you going?" And she was so angry. So I said, "I'm going, auntie, because today is my birthday." So she's like, "Today you can't go." What? I said, "Today is my birthday." So today's your birthday? I said, "Yes." So "Oh, okay. Then give me 1 more hour. Finish that scene and then go, okay?" I said, "Okay." So 9 की जगह मैं 10:30 गई रात को. लेकिन जितना भी गुस्सा एंगर होता है उसमें she's like, "Oh, it's your birthday." तो उनको लगा कि हाँ तो जाएगी ना अपने फैमिली के साथ. फिर जैसे ही उनका फोन कट हुआ, 10 मिनट के अंदर पूरे सेट के लोग भाग के आए कि ठीक है, श्वेता मैम इज लीविंग इन 1 hour. चलो ये खत्म करो. जो सारे मुझे एटीट्यूड दिखा रहे थे, तो यू कांट गो. पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया. एंड रिमेंबर व्हेन आई वेंट होम, इतना बड़ा बुके, व्हाइट फ्लावर्स का इतना बड़ा बुके और इतना बड़ा केक आंटी ने मुझे भेजा था. So sweet. Remember when I went home after that whole shoot, it was already there at home. So that was sweetest. These are my memories, of course.
श्वेता, सेट पे बहुत सारी बातें होती रहती है जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, और आपने तो इतना कमेंडेबल और इतना सारा काम किया है, तो सेट पे तो जरूर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते होंगे, तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करते हो? देखो, कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ऐसा है ना कि मैंने रियलाइज किया है कि वहां पे कोई जानी दुश्मन नहीं होता। सारे जो वहां पे हो रहा होता है ना, वो सब मोमेंट्री होता है, उसी वक्त का होता है। उस वक्त अगर आपने पार कर लिया ना, 2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे ज्यादातर ईगो हैसल्स होते हैं कि उसको जल्दी क्यों छोड़ा, मुझे जल्दी क्यों नहीं छोड़ रहे, उसका क्लोजअप पहले क्यों लगा रहे हैं, मेरा क्लोजअप पहले क्यों नहीं लगा रहे। मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होते हैं, या 2 लाइन उसको ज्यादा क्यों है, 2 लाइन मुझे ज्यादा क्यों नहीं है। इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो उसी वक्त के होते हैं। जैसे अगले सीन में उनको ज्यादा लाइंस मिल जाती हैं, उनको ज्यादा फुटेज मिल जाती है, या उनको जल्दी छोड़ दिया जाता है, सारी मतलब जो प्रॉब्लम्स है खत्म हो जाता है। यहाँ का फंडा बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, लेकिन हमसे आगे कोई ना बढ़े। ये ये जो फंडा है हमारी इंडस्ट्री का, यही है जो ईगो कॉन्फ्लिक्ट लाता है, और इसी की वजह से होता है। और उस वक्त जब आपने शांति से झेल लिया ना, वो निकल जाता है, वो खत्म हो जाता है। और कोई पर्सनल ये जो ग्रज और ये सब जो होता है कोई नहीं रखता। और एक बात मैंने और नोटिस किया है कि शो खत्म होने के बाद 1-2 ही ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली आपके फ्रेंड बनते हैं और आपके टच में होते हैं। बाकी सब भूल जाते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे निकल जाते हैं। कोई आपका सच्चा दोस्त नहीं है इस इंडस्ट्री में, और कोई आपका सच्चा दुश्मन नहीं है, सब ऊपरी है। सब अपने बबल में रहते हैं। सब अपनी बबल में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट यू। अगर आपने पार्टी रखी है, आप उनको दारू पिला रहे हो, दे ऑल कम टू मीट यू, टू बी देयर विद यू। एंड इफ problems may, because they all have problems, this industry is not easy, you know, everybody has their own EMIs to pay, you know, their own families, student children जिनके स्कूल की फीस भरनी है। there are so many things to do to survive the lifestyle जो उन्होंने create किया है, उसको survive। everybody is in tension, वो अपनी टेंशन हैंडल करें कि तुमको मिले, या तुम्हारी टेंशन हैंडल करें। so कोई किसी की टेंशन में नहीं जाना चाहता। they want to know, want to gossip, but they don't want to help। so I think that is all right, I don't feel bad for those people, but yeah, that's what, इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है शो इस इंडस्ट्री में। So that's a good segue to my next question. My next question is that at any point in time, have you noticed any jealousy or the mean girls attitude जो होता है लड़कियों में एक दूसरे आपस में? क्योंकि मैंने नोट किया है कि औरतें जो हैं सबसे ज्यादा एक दूसरे को जो है सबसे ज्यादा एक दूसरे से जेलस होती हैं। और मैं अंजलि, हम लोग आपस में यही बात करते हैं कि हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए। उल्टा हम करते हैं कि एक दूसरे से जेलसी करते हैं, मीन गर्ल्स का एटीट्यूड, जैसे हम लोग हाई स्कूल में बच्चियां हैं ऐसे बिहेव करते हैं। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया कभी? मैंने जैसे कि अभी आपसे कहा कि हमारे इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। तो जैसे मतलब I was that way very lucky to have good co-stars with me, good ladies around me. But yeah, initially, as I told you, when Kasauti started, all the ladies and everybody were somehow not very friendly to me, and they were little mean. I don't know. So yeah, so they were like, वो अपनी दुनिया में थे, मैं बाहर थी। So for 1 or 2 years I did face that kind of problem, but probably उनको लगा शायद I'm not a part of their, you know, their league or whatever। मैं बहुत नई थी, मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरी पूरे खानदान में मेरे आसपास ऊपर नीचे फ्रेंड्स कोई, और दूसरी मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। they were all established, they were, you know, they were from better families, and तो मे बी उनको लगा कि शायद हमारी लेवल की नहीं है, मे बी दैट्स व्हाई दे डिड ऑल दैट। बट ओनली दोज 2 years, आफ्टर दैट till date I've never met anybody. Everybody is so sweet, they try to help each other, they try to, you know, when everybody is eating nowadays, तो अभी ऐसा हो गया है when एक बंदा घर से खाना लाता है तो सबके लिए लाता है, there's no, you know, single टिफिन नहीं होता है, सब बैठ के खाते हैं। so अभी माहौल बहुत अच्छा हो गया है, या फिर क्या, या मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है, पता नहीं। पर मुझे ऐसा कोई आफ्टर those 2 years मुझे ऐसा कुछ मेजर कुछ फील नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ फेस नहीं किया मैंने। Very nice to hear, Somi. Things are changing in industry. People are becoming wonderful. That's wonderful. अब इंडस्ट्री में अगर बदलाव आ रहा है, वो तो श्वेता की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, मगर दुनिया में औरतों का बदलाव आ जाए एक दूसरे के लिए तो और अच्छा है। वो होपफुली भगवान के दया से होपफुली ये होगा एक ना एक दिन
कि एक दिन होगा, आई एम श्योर। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारी इससे पहले बात नहीं, इस टॉपिक पे मुझे ये ऐड करना चाहिए कि नहीं, पर हम जब बात कर रहे थे कि औरतें कैसे बातें नहीं करती आगे, हम मुझे याद है हमारी बिल्डिंग में एक लेडी रहती है, काफी एजुकेटेड है, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है, बड़ी अच्छी सैलरी पे है। वो उसका हस्बैंड जो है उसे रोज मारता है, ठीक है, और रोज उसकी आवाजें आती है, रोज उसके छोटे से बच्चा भी है, और उसकी जो फ्रेंड है वो मेरी कॉमन फ्रेंड है। तो ये जो फ्रेंड है, she tried saving her, she tried speaking to her, she tried speaking to her husband, she asked her husband to speak to them, but she refused to take any kind of help, और उसने उस औरत से बात करना भी बंद कर दिया, that you don't interfere in my life। ये होता है, ये भी होता है। हाँ। और औरतें अगर किसी को हेल्प करना चाहें भी ना, तो लोग शट डाउन हो जाते हैं, लोग उनका हेल्प लेना बंद कर देते हैं। तो जब तक ये नहीं खत्म होगा ना, तब तक मेरे ख्याल से लोग खुद भी दूर भागते हैं, खुद भी। आई थिंक ये बहुत प्रॉब्लम है हमारी इस बात के ऊपर। सवाल जो आपसे है वो कहा इससे मिलता जुलता है कि लोग क्यों नहीं बात करते डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर, और जो करने वाले होते हैं सेक्सुअल अब्यूज, वो लोग किसी ना किसी तरह इस सिचुएशन से बच के निकल जाते हैं, चाहे अपने पैसे का इस्तेमाल करके, चाहे पावर का, बट लोग सामने आके अभी भी झिझकते हैं इस बारे में ओपनली, जैसे आपने बताया कि शी स्टॉप टॉकिंग टू दैट वुमेन। तो ऐसा क्यों होता है और क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन को बदलने के लिए? आई नो इट्स वेरी हैवी एंड मुश्किल सवाल है, बट आई नो यू विल बी एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। देखिए, मेरे पास भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है मैं वही बोल सकती हूँ। और मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी एक और फ्रेंड है जो बॉम्बे में नहीं रहती, मुझसे कभी कभी फोन या फेस टाइम पे बात करती है। उसका हस्बैंड जो है, कई बार ऐसा होता है कि वो अगर फ्रेंड के साथ लेट आती है तो उसको खींच के थप्पड़ मार देता है, सड़क पे कुछ पूछ रही है तो उसको खींच के थप्पड़ मार देता है, उसको कुछ भी बोल देता है, अपने फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट कर देता है, कुछ भी करता है। चलो रोज नहीं होता, मैं मानती हूँ, कभी कभी होता है, लेकिन होता है। जब मैं कहती हूँ दिस इज नॉट राइट, हाउ डेयर ही, ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोलती है पर प्यार भी तो करते हैं ना, उस दिन भी मैं ऐसे रो रही थी तो वो ये ले आए, उनको भी बुरा लगा, वो प्यार भी करते हैं ना। उनको ये लगता है कि ठीक है एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, प्यार करता है, पर उनको समझ में नहीं आता जो किसी के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर सकता है, जो किसी के सामने तुम्हें इस तरह मार सकता है, सड़क पे करता है, वो प्यार नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है कि तुम अपने लिए नहीं खड़ी हो रही हो, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। उसने सड़क पर अगर तुम्हें मारा, तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, इसलिए वो फिर से तुम्हें सड़क पर मारता है। एक बार तुमने अपने लिए स्टैंड ले लिया होता तो शायद अगली बार ये नहीं होता। अगर हम ही खुद की मदद नहीं करेंगे तो और कौन आके हमारी मदद करेगा? हम ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद ही अपने आप को इतना वर्थ नहीं समझेंगे कि मुझे ये इस तरह ट्रीट नहीं कर सकता, तो वो ट्रीट करता रहेगा हमें। और मुझे ये जो आदमी जो है ना, क्योंकि मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये बैलेंसिंग एक्ट करते हैं कि एक जगह थप्पड़ मारा, दूसरे दिन वो ब्रेसलेट, डायमंड ब्रेसलेट ला रहे हैं, दूसरी दफा मुक्का मारा, तीसरी दफा वो फिर फूल ला रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट जो होता है ना, ये कॉम्पनसेशन जो करते हैं ये अब्यूजर्स, ये बहुत मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। उनको पता है कि किस तरह इनको अब्यूज करो और किस तरह इनको फिर ठीक करो, पहले मारो फिर प्यार करो। और इसी को औरतें प्यार समझती हैं, इसी को समझती हैं औरतें कि ये प्यार है, वो जो कर रहे हैं वो प्यार कर रहे हैं। उसमें नशे में कर दिया या फिर गुस्से में कर दिया, पर कैसे कर दिया, अपनी माँ को तो नहीं मारा। ये जस्टिफिकेशन जो करते हैं ना ये डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स जो हैं, वो उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि मैं उस जगह पे रह चुकी हूँ, 16 साल से 24 साल की उम्र तक मैं उस जगह पे रह चुकी हूँ। और मैं तो बच्ची थी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं ये बदल जाएगा, और ये मैंने शायद कुछ गलती कर दी होगी, मैंने प्रोवोक किया होगा, मेरी वजह से कुछ, क्योंकि वो बोलते हैं you bring out the worst in me, you're the one. Yes, but that is not true. That is not true. That is not true. Right. That is you not know, they say and they also scared. I've seen कि औरतों को ये भी लगता है कि, कई औरतों को लगता है, सारी औरतों को मैं नहीं कह सकती, कई औरतों को ये लगता है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, अगर इसने मुझे छोड़ दिया, जो अब्यूज कर रहा है उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी,
उनको ये नहीं दिखता है कि जैसे एक है मेरी फ्रेंड जो इस तरह अब्यूज होती है, तो उसको नहीं दिखता है कि वो बहुत अच्छे केक्स बनाती है, वो बहुत अच्छी मतलब सिलाई बहुत अच्छा करती है, चीजें बहुत अच्छा करती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको ये भी लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर कोई टैलेंट ना हो। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर ये बंदा आपकी लाइफ से चला जाए जो आपको जीने भी नहीं दे रहा है, तो आप सर्वाइव ना कर सके। हर किसी के लिए यहाँ काम है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। यू विल सर्वाइव, बट द ओनली दैट कि आगे क्या होगा सोचकर भी वो नहीं छोड़ते। तो अभी जो विमेन एम्पावरमेंट की बात आप कर रहे थे पहले, उसमें आता है कि माँ बाप को, बेटियों को सबसे पहले ये सिखाना है कि बेटा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, शादी के बाद काम नहीं छोड़ना। 100%। माँ बाप कहते हैं कि अभी शादी जब तक नहीं हुई है कर लेने दो, शादी के बाद देखेंगे। नहीं, माँ बाप को ये सिखाना है कि बेटा हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उतना ही पढ़ो लिखो जितना आप चाहती हो, और हमेशा अपने खुद की कमाई रखना, ताकि अगर आप स्टैंड ले सको, कुछ करना चाहो, तो आप डिपेंडेंट ना रहो और आपको मजबूरन ना ये सीखना पड़े, ना मजबूरन आपको ये सब ना सहना पड़े। ये जब तक हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे इंडिपेंडेंट और आगे नहीं बढ़ेंगे। तब तक ये नहीं रुकने वाला, ये चलता ही रहेगा। लोग डरते ही रहेंगे बाहर आने से, लोग बदनामी से डरते हैं। कितने लोग तो बदनामी से डरते हैं। जब मेरे साथ हुआ था दूसरी बार, तो मुझे कईयों ने बोला कि लोग क्या कहेंगे कि तूने मतलब तेरी दूसरी शादी भी खराब हो गई, लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे फिर से वही हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग के चक्कर में मैं कैसे जीऊं? मेरे बच्चे रोज कैसे देखें, कैसे घर की लड़ाइयां देख देख के उनकी ग्रोथ कैसी होगी? वो डर के सोते हैं, मैं ये नहीं होने, मैं लोग क्या कहेंगे। यहाँ तक कि पार्टनर खुद कहता है तेरी औकात है, तेरी औकात है छोड़ने की। तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी को छोड़ने के लिए नहीं, किसी को रखने के लिए औकात चाहिए, छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए। We're so proud of you, Shweta, for using your voice and being so honest and coming forward and speaking your heart out. ये सब बातें सब लोग आके कैमरा के सामने नहीं बोल सकते। और सोमी, यहाँ पे I would like to take a moment and ask you to say one word or say something, because तुम भी इतना commendable काम करती हो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, रोज इतनी सारी वुमेन को बचाती हो, स्पेशली ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तुम्हारा We're so proud of you, Somi. तो yes, thank you. देखो मेरा जो अगला सवाल है वो इसी पे रिलेटेड है। मेरे हिसाब से हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है विक्टिम ब्लेमिंग। हम लोग विक्टिम ब्लेमिंग, जब तक ये स्टिग्मा नहीं ब्रेक करेंगे ना कि विक्टिम ब्लेमिंग का, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। अभी 3 या 4 साल पहले मैंने अपनी आवाज, I found my voice. I started speaking up about being sexually abused as a child and then also being a victim of rape and domestic violence. तो मैंने एक Instagram पे अपना एक पोस्ट किया था बिना नाम लिए, और सबको पता है वो कौन है। तो इतनी मुझे हेट कमेंट्स मिले, इतने हेट कमेंट्स मिले, और औरतों की तरफ से जो इस इंसान की फैन है। और मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये मतलब मैंने पहली दफा 4 साल, मुझे इतना मुश्किल होता है to speak about being abused physically and sexually, and also just to say it on a public platform, it was so difficult for me. जब मैं सुबह उठी तो इतने comments, अरे सोमी अली पब्लिसिटी स्टंट कर रही है, पब्लिसिटी के लिए ये सब बोल लिया। हालांकि लोगों को पता है कि ये सच है। ये होटल लॉबी में मेरे साथ हो चुका है ये इंसिडेंट्स, पूरी दुनिया को पता है, इंडिया में पूरे बॉलीवुड को पता है कि ये बात सच है। मगर लोग फिर भी हीरो वर्शिप, ये कब खत्म होगा मुझे तो नहीं पता। मगर मैं अपनी सच्चाई बोलने से नहीं रुकूंगी। मेरी जो सच्चाई है वो मेरी सच्चाई है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने अपनी आवाज ढूंढ ली है, मुझे मिल गई है, और मैं कभी नहीं रुकूंगी अपनी सच्चाई बोलने से, कभी भी। We are so proud of you. जब बराक ओबामा एंड हिलरी क्लिंटन के साथ आपने काम किया, बराक ओबामा ने आपको अवार्ड दिया, तो आपको किसी पब्लिसिटी स्टंट की जरूरत नहीं है। Thank you for having my back. Thank you. मगर I was shocked, मैं हैरान हूँ। तो श्वेता बताइए, ये हम स्टिग्मा, ये विक्टिम ब्लेमिंग और ये स्टिग्मा, हम लोग कैसे इसको ब्रेक करें? क्या करें? हम लोग के
विक्टिम्स डरती हैं बोलने के लिए, एम्बैरेस होती हैं। हम ये स्टिग्मा कैसे ब्रेक करें, क्या करें? मेरे ख्याल में तो आदमियों को आवाज उठानी चाहिए। मे बी all men are not bad. I'm not saying all men are bad. All women are not bad. Or men also get abused. ये भी होता है। मगर क्या ये हम क्या करें कि ये स्टिग्मा, देखें जैसे जेफरी एप्स्टीन जो है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, फाइनली जो है उन औरतों को जस्टिस क्या मिली, मतलब इससे इंसान हील तो पता नहीं कैसे होता है। मैं तो अभी तक हील नहीं हुई हूँ। मेरी हीलिंग तो नो मोर टीयर्स के लोगों को बचाना, वो मेरी हीलिंग है, मेरी थेरेपी है। मगर ये है कि अभी हमें बहुत, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। और इस सब्जेक्ट पे मुझे यकीन नहीं आता है कि औरतें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं इस सब्जेक्ट पे। और ये स्टिग्मा और ये विक्टिम ब्लेमिंग हमें खत्म करना है, और इसको कैसे करें हम बताएं आप। इसको खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पता है क्या होता है कि somehow पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक तो हम किसी इंसान को जो जज करते हैं ना, वो उसकी बाहर की पर्सनालिटी से जज करते हैं कि वो बाहर कैसा है, ठीक है, वो बाहर लोगों के साथ कैसा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक आदमी बाहर कुछ और होता है, दोस्तों के साथ कुछ और होता है। औरत मर्द कोई भी मैं बात कर रही हूँ, एक इंसान बाहर कुछ और होता है और दोस्तों के साथ कुछ और होता है, और ऐसा पार्टनर कुछ और होता है। उसके 3 रूप होते हैं। अगर कोई एज अ पार्टनर कंप्लेन कर रहा है कि एज अ पार्टनर मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो लोग बोलते हैं मैं मिल चुका हूँ, ही सो स्वीट, वो इतना अच्छा है, वो इतना अच्छा है, उसने ये किया, उसने वो किया, चैरिटी चला रहा है, अच्छा इंसान है। अरे चैरिटी चला रहा है, लोगों की जिंदगियां बचा रहा है, तुम कैसे कह सकती हो उसके बारे में ऐसे? ये मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम, जो इंसान चैरिटी चला रहा है, लोगों की जिंदगियां बचा रहा है, और तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो इतनी गंदी गंदी गालियां छोड़ी हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा कि बोलने दो, बाहर में जाओ। मैंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, तो लोग कमेंट नहीं कर सकते, मगर मैं तो बोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आप सही, इंसान के 3 रूप होते हैं, जो वो अपने इंटीमेट पार्टनर के साथ जैसे होता है, वो बाहर किसी और के साथ अलग होता है। और जो दो, एक औरत और आदमी के बीच में कमरे के अंदर, घर के अंदर जो हो रहा है, वो सिर्फ वो जानते हैं, तीसरा इंसान नहीं जानता है। कोई नहीं जानता, और ऐसे कई बातें होती हैं, ठीक है, कि जिसके साथ हो रहा है, जो बेडरूम के अंदर था, जिसके साथ ये सारी बातें हुई, 4 दीवारियों के अंदर हुई, ऐसी कई सारी बातें हैं जो खुल के नहीं बता सकते, बट देव गॉन थ्रू। Exactly. Okay, लेकिन just because somebody's hello, कैसे हैं जी, अच्छे हैं करके चले गए, doesn't mean that कि वो अभी अंदर थप्पड़ और गाली देकर नहीं गया है। हाँ, exactly. और अभी अगर ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है कि मैं, ये तो वही बात होगी कि मैं नो मोर टीयर्स के विक्टिम्स को बचा रही हूँ अंजलि, और मेरा अभी बॉयफ्रेंड तो नहीं है, मगर समझ लो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको घर आके थप्पड़े मार रही हूँ। ये तो वही बात हो गई। मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आज तक नहीं बोला, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ। मेरा जो ये अभी चल रहा है सिचुएशन, यहाँ पे बोला गया, वो सबके सामने जाके हर जगह कह रहा है कि बच्चा लेके भाग गई, बच्चे को नहीं मिलने दे रही है। वो ये नहीं बताता कि बच्चे को नहीं मिलने दे रही, बच्चा कितना डर गया। वो ये नहीं बताता जिस दिन उसने डिसाइड किया कि तू बच्चे से नहीं मिलेगा, उस दिन तूने क्या किया था। वो ये नहीं बताता कि मैंने बिल्डिंग की लॉबी में, बिल्डिंग की गार्डन में, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा पे जो रिकॉर्ड हुआ है, जो मेरे पास फुटेज है, उसने माँ को जमीन पे गिरा के लातों से मार के बच्चे को खींचा, बच्चे का हाथ दर्द हो गया, 4 दिन उसके हाथ में दर्द रहा था, उसे मालिश कर करके मैं ठीक कर रही हूँ। बच्चा इतना डर गया था कि रात भर सोता नहीं था, अगर मैं करवट ले लूं तो वो उठ जाता था। उस बच्चे को उस सिचुएशन से बाहर निकालना, उस बच्चे के पास में वीडियो है कि वो जैसे बाहर आहट होती थी, बेल बजता था, वो उठ के बैठ जाता था कि कौन आ गया, तो उसको बोलता था कोई नहीं आया, ओके, कोई नहीं आया। वो ये कहानियां नहीं बताता, और मैं भी नहीं जाना चाहती। मैंने कोर्ट में केस डाल दिया है, और उसमें सारी प्रूफ के साथ सारी चीजें हैं। सिर्फ वही मैं कह रही हूँ ना कि लोगों को नहीं पता। और मुझे लोग इतना आके मेरे डीएम्स में लोग ऐसे मैसेजेस डालते हैं कि कितनी वाहियात घटिया औरत हो, कितनी गिरी हुई औरत हो, एक बाप को तुम अपने बच्चे से नहीं।
कैसा बाप है। मेरे पास वीडियोस हैं जो बच्चे को जब वो मिलने आता है तो उसको उससे प्यार से बात करो, उससे मिलो, प्यार से बात करो। उसको तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तेरी माँ तेरे साथ खेलती नहीं है, तेरी माँ ये नहीं करती, तेरी माँ वो नहीं करती, तेरी माँ दिन भर बुक पढ़ती रहती है, तेरी माँ ये करती रहती है, तेरी माँ। मेरे पास वीडियोस हैं, मैंने नहीं डाले। उसने छोटे छोटे, उसने बड़ी बड़ी वीडियोस, ठीक है, बड़ी बड़ी वीडियोस के छोटे 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 पार्ट्स को एडिट करके, पूरी वीडियो दिखा तब पता चलेगा, छोटे 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 पार्ट्स को एडिट करके कि देखो ये कर रही है, पर मेरे पास तो पूरी वीडियो है ना, मैं डाल सकती हूँ। वो छोटे छोटे देखकर लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स लिखे कि तू ऐसी है, तू इतनी गिरी हुई है, देख तेरी बेटी के साथ भी यही होगा, देख तेरी, इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने लिखी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। मैं कमा रही हूँ, मैं बच्चा पाल रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही है ना किसी के लिए, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है ये सब करके। ठीक है, ये जो हो रहा है बच्चे पे भी तो असर हो रहा है। अगर अगर मैंने कुछ स्टैंड लिया तो कुछ सोच के लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इतनी गंदी गति है उसमें से 90% औरतें होती हैं। हाँ, औरतें होती हैं यही मैं जिनके खुद के बच्चे होते हैं, वो आती हैं, वो नहीं जानना चाहती कि क्या हो रहा है, वो नहीं जानना चाहती। लेकिन मैं अपनी छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि मैंने हर स्टेप जो लिया है वो सही लिया है, मेरे बच्चे के हक में लिया है। अब वरना आज पुलिस मदद नहीं करी, कैसे मदद नहीं कर रही, कैसे मदद नहीं कर रही अगर हो रही है तो, मतलब ऐसे कैसे, अगर तुम सही हो, तुम्हारे पास इतनी एविडेंस है, तो पुलिस तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर रही है। मैं कौन से प्राइम मिनिस्टर की सगी लगी पड़ी हूँ, मेरी क्यों हेल्प कर रही है। मैं भी तो वैसे ही जा रही हूँ जैसे तुम जा रहे हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है, आई हैव प्रूफ्स, दे हेल्प मी, because I'm not coming and troubling you, but people will not see that. People will only see. This needs to stop. Yeah, come on, yeah, please continue. मालूम नहीं है बिना, मतलब आई एम फीलिंग सो सैड एंड सॉरी टू हियर दैट श्वेता एंड सोमी। जिनको मालूम नहीं है, बिना सोचे आके किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कमेंट करना, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज हॉरिबल। आप ही समझ सकते हैं कि आपके दुख से आप क्या गुजरे हैं, और सोमी की सिचुएशन, व्हाट शी वेंट थ्रू। लोगों को बिना सोचे, और स्पेशली जब अदर वुमेन कम एंड डोंट सपोर्ट वुमेन, दिस इज हॉरिबल। And women are the first one to point out, to accuse you. On a lighter note, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हमें पलक के बारे में बताइए कि पलक क्या करियर चूज करना चाहती है। As gorgeous, as stunning, as beautiful, as talented as you, उनकी क्या लाइकिंग है और वो क्या करियर परस्यू करना चाहती है? वो एक्टिंग ही परस्यू करना चाहती है। वो अभी एक फिल्म पे काम कर रही है कॉल्ड रोजी, और उसकी शूटिंग अभी चल रही है। तो वही काम कर रही है। एंड शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। सुबह से शी स्टार्ट्स हर डे इन द मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock. शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग टू लाइट दिया इन द मंदिर। ये वो 9-10 साल से कर रही है, और वो she lights diya in the mandir, and then her day starts. She goes for horse riding, she goes for kickboxing, for her gymming, for everything that is required for her profession. She is very very hardworking, but otherwise she likes to watch Netflix and movies and all that. She's मतलब वो जहाँ वो लेट के कुछ कर सके वो कर सकती है। आजकल उसने शुरू किया है ऑडियो बुक ऑडियो सुनना। ऑडियो बुक्स के लिए बड़ा वो अभी मधु बालाजी के ऊपर सुन रही है कि हाँ, आई वॉन्ट टू लिव, क्या नाम था, तो वो वाला जो सुन रही है। एंड शी इज मतलब अभी वो जैसी जैसी बड़ी हो रही है वैसी वैसी बहुत ज्यादा, वो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल थी लेकिन अब बहुत समझदार होती जा रही है। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। I'm so proud of her. आपने कभी ऑटोबायोग्राफी लिखने का सोचा है? ऑटोबायोग्राफी मेरी कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी हमारी औरतें पढ़ेंगी, सारी औरतें। औरतों को मिलाना है और उनको दिखाना है और कहानियों से, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको सिखाना है और उनको ग्रो करना है। तो आपकी ऑटोबायोग्राफी विल बी अमेजिंग। सारी कॉपीज और अंजलि खरीद लेंगे। यूएस से श्वेता लाइन लग जाएगी, आपकी ऑटोबायोग्राफी सोल्ड आउट हो जाएगी। So sweet, that is very sweet. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा इस बारे में, कभी दिमाग में भी नहीं आया। अब आप पूछ रहे हैं तो ये बस सोच रही हूँ, वरना तो कभी ये दिमाग में भी नहीं आया कि कभी ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ अभी
ऐसा कुछ नहीं हुआ है खास इतना बड़ा जिसके लिए मैं लिख सकूं कि लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, आसपास के लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं ये कई बार तो ये बोलते हुए भी मुझे लगता है कि you've gone through a lot, जब लोग मुझसे कहते हैं तो I know I've gone through a lot, I know I accept that and I don't deserve going through any of these things that that I had. So I feel whatever happened with me was not right. I did not deserve it. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए मैं ये डिजर्व करती, ये कर सकती थी। तो मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ है और वो डिजर्व नहीं करती थी, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है और वो अभी भी कहीं डार्क में है एंड वी डोंट नो अबाउट देम, राइट। सो आई थिंक आई स्टिल there's still so much around me। अगर बुक लिखूंगी ना कभी, तो मैं ऐसी औरतों को ढूंढ के उनके बारे में लिखूंगी। अगर मैं कभी तो ऐसी जिनके बारे में बहुत कुछ, और वो उनसे बाहर आके आज बहुत कुछ कर भी रही हैं और कुछ उन्हीं गमों में खो गई और उनका कुछ भी नहीं हुआ, तो इनके बारे में भी लिखना जरूर। हम हमेशा ढूंढते हैं कि देखो ये कैसे बाहर आई, हाँ। लेकिन ऐसी औरतें वो भी हैं जो बाहर नहीं आ पाई। तो हमें ये भी सिचुएशन लोगों को बताना जरूरी है कि ऐसे भी लोग डूब जाती हैं, ऐसी औरतें खत्म हो जाती हैं जो बाहर नहीं आ पाती। हेल्प देम। सो आई थिंक दैट दोस काइंड ऑफ बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन oh she was out and she could do that. That's why I think my preference would be that's a beautiful idea and a very beautiful concept actually. That's making me think of stuff. That's a good idea. All right, go ahead Anjali, sorry to interrupt you. Before we move on to rapid fire, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये कि आप इतना एक्टिंग में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, यू आर अमेजिंग एट व्हाट यू डू, तो किस मोमेंट पे आपको लगा कि आप एक्टिंग करियर परस्यू करना चाहती हैं? मैं सच बताऊं तो ये स्टोरी मैं कई इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, अभी बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है इस बारे में, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा से पता था कि मैं जो करूंगी इसी में कुछ करूंगी। मैं डांसर बनना चाहती थी, मैं डांसर बनना चाहती थी और मैं चाहती थी मैं डांस करूं, ठीक है, तब मैं सीखना चाहती थी, लेकिन तब हालात नहीं थे, माँ को पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे सिखाना है, तो मैं तब सीख नहीं पाई। लेकिन घूम घुमा के मेरा इंटरेस्ट इसी में था, इसलिए मैं अभी भी कहती हूँ अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं हाउसवाइफ होती। मैं और कुछ नहीं कर सकती, मेरा टैलेंट सिर्फ हाउसवाइफ और एक्ट्रेस तक है। तो भगवान ने मुझे एक्ट्रेस बनाया, जिसको मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो इसलिए जब मैं काम नहीं कर रही होती तो उस वक्त मैं हाउसवाइफ होती हूँ। हाउसवाइफ नहीं, हाउस मदर होती है, हाउस वुमन होती हूँ। तो हाउस वुमन, मैं घर में पर्दे चेक करना, ये धुलवाना, ये सफाई कराना, खुद नीचे मेड्स कर रही है तो मैं ऊपर चढ़ के सफाई कर रही हूँ। सो आई एम अ कंप्लीट हाउस वुमन एंड I like staying at home, taking care of my kids and my house, and making the menu of the house. So yeah, that's the whole thing. We are happy that you pursued this because we enjoy watching you. Yes, so thank you. Should we move on to rapid fire rounds? Let's do it. Let's have some fun. Hey Bhagwan, I'm very bad at rapid. Let's go. Hey, बहुत simple है. Okay. What is one thing people would like to know about you? There's one thing that people will be surprised to know about me, that I don't spend money. I don't like spending money. I don't know. Will they be surprised? I don't know. I don't like, and I'm a very strict mother, and I don't party. I don't go out. I don't know. I think they know everything about me. I don't know. No, That's fair. That's a good answer. All right. What is your favorite word? My favorite word? Yes. My favorite word is thank you. Love it. Is because कि मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशन से हम बाहर निकलते हैं, जब आप भिड़े रहते हैं चीजों में, अगर कोई एक हेल्प भी आपको आती है, that is very precious. Yes. Thank you बोलने वाले लोग, मतलब थैंक यू रिसीव करने वाले लोग बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में। I feel like doing this. I'm so proud of you. That's such a good answer. What a good answer. Shweta, what are your views? So, what is my view? Yeah. पूछो अंजलि.
What are your views on social media? Describe in one word. जो word आपके मन में सबसे पहले आता है social media के लिए? Ever evolvingly toxic, maybe? One word नहीं है ना ये? I like toxic. Yeah, toxic. Yes, toxic. Very toxic. Lady Gaga said social media is the toilet of the internet. Perfect answer. I should have repeated that. Yeah, exactly. Okay, what sound or noise do you love? What sound or doorbell? Doorbell पसंद है. डोरबेल पसंद है क्योंकि आजकल कोई किसी घर में आता ही नहीं है. पहले वो फोन का बेल बजाता है फिर आता है. सच बोला. हाँ, तो जब मेरा डोरबेल बजता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कोई आया. नॉर्मली क्या होता है, नीचे से सिक्योरिटी बोल देता है कि मैम आ रहे हैं, तो आपको पता होता है नीचे से कोई आ रहा है, आप खोल के रखते हो. आपके डोरबेल आजकल बजते नहीं है. हाँ. तो आई थिंक डोरबेल. बॉम्बे. पहले कहते थे ना लोग, कहीं मैंने पढ़ाई था, किसी ने कहते थे, लोग कहते थे कि चलो मिलके प्लान करते हैं. आजकल लोग कहते हैं चलो मिलने का प्लान करते हैं. प्लान मिलके प्लान करना नहीं, मिलने का प्लान करना होता है. लोग इतने बिजी हैं कि nobody wants to meet. वही. So, Shweta, what is one thing you're excited about that is coming in 2021 that no one knows? Reveal a secret. Excited in my life? What was it? Sorry, can you repeat the question? What is one thing you're excited that is coming in 2021? Maybe new project. My daughter's movie, Rosie. Oh, yay! I will be giving her a huge shout out. We'll call it. Yes, please. Yes, please. Okay, so what other profession would you like to attempt, or would you even give a thought? Let's say if you had an idea. Okay, ठीक है, acting तो मैं जारी रखूंगी, बरकरार रखूंगी, मगर मुझे एक और कोई चीज ट्राई करनी है. कोई ऐसी चीज है? एक और कोई चीज अगर मुझे ट्राई करनी हो तो मैं क्या ट्राई करूंगी? प्रोफेशन की बस मैं कुछ करना चाहूंगी. प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता. एज अ प्रोफेशन में क्या ट्राई करूंगी? It could be knitting, cooking, singing, dance classes, anything. मैं कुक अच्छी हूँ, लेकिन गिन चुन की 4-5 चीजें ही बना सकती हूँ जो मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और अब मेरे बच्चों को खाना बहुत अच्छा लगता है. तो मैं कुकिंग में तो जा ही नहीं सकती. रीडिंग की जहां तक बात है, आई रीड, लेकिन उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती रीडिंग. लेकिन हाँ, तो उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती. एक्टिंग, अगर मैं एक्टिंग में हुई नहीं तो मैं एक्टिंग कैसे, मतलब तो अगर मैं एक्टिंग में हुई नहीं तो मैं एक्टिंग कैसे सिखाऊंगी? हाँ, मैं या तो वो जो एडवेंचरस होते हैं, जो पत्रिकाएं लिखते हैं, जो, या फिर हाँ, वो जो पत्रिकाएं लिखती है, लोगों को मिल के दूसरी कंट्री में जाके हर चीजें दूसरों के, मुझे ना दूसरों की लाइफ में, मतलब लोग कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में तो हमें तो पता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं. आपकी लाइफ में जर्नलिज्म. हाँ, मुझे दूसरों की जानना बहुत जरूरी है कि ये अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, ये सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं. मैं भी ऐसा कुछ करती. हाँ, शायद कुछ ऐसा करती. इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं यार. वेरी गुड क्वेश्चन. मैं सोचूंगी अब इस बारे में. मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं. शायद हाँ, ट्रैवल करूँ, लोगों को मिलूं, मैं उनके बारे में जानूं, उनकी सभ्यता के बारे में जानूं, उनकी दुनिया के बारे में जानूं. आई थिंक आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट. That's really nice. So Shweta, what did baby Shweta get in trouble for? Were you a mischievous child? बेबी श्वेता की प्रॉब्लम ये थी कि उसको जो चीज बोलते थे कि ये मत करो, ये रिस्की है, उसे वो जरूर करना होता था. ठीक है, वो जरूर करना होता था, उसको हमेशा करना होता था. उसको बोलते थे कि ये आयन का जो स्टेयर, वो हमारे यहाँ पे ना छत से लेके वो आयन का वो होता था, वो जो 2 साइड में आयन लगे होते हैं, आयन बार्स लगे होते हैं, फिर बीच में पतली पतली आयन बार्स लगी होती है, और बहुत ऊंचा था. तो मेरी माँ कहती थी कि ऊपर मत चढ़ो, ऊपर मत जाओ, लेकिन मुझे जरूर जाना होता था. हाँ, अरे सबसे बड़ा जो मैं प्रॉब्लम आती थी पेड़ पे चढ़ने की वजह से. मैं सबसे ज्यादा पेड़ पे चढ़ती थी. मैं सबसे ज्यादा हमारे प्रतापगढ़ में, वहां पे हमारे अमरूद के और आम के बहुत पेड़ होते थे. और मैं जो नीचे गिर जाए वो तो मैंने खाना ही नहीं है. मैं हमेशा ऊपर चढ़ के
अमरूद खाती थी। मुझे याद है कि एक बार मैं चढ़ गई थी, तब हम लोग ऐसे निक्कर्स पहनते थे और शर्ट पहनते थे जब छोटे थे। तो एक बार मैं ऊपर गुआवा लेने गई थी, अमरूद तोड़ने गई थी, मैं ऊपर चढ़ गई और मैं ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे फिसली कि एक टहनी मेरे शर्ट में घुस गई थी, ऐसे ऐसे शर्ट में घुस गई और मैं शर्ट के साथ लटक गई वहां पर। और कितनी देर तक चिल्लाती रही, छोटी थी मैं, कितनी देर तक चिल्लाती रही। फिर मेरे जो छोटे नाना थे उन्होंने मुझे देखा क्या है ऊपर से चिल्ला रही लटकी हुई है, और वो ऊपर चढ़ के मुझे पहले तो शर्ट से उठा के नीचे जैसे ही उतारा फटाक से एक थप्पड़ मारा। मैंने सबसे ज्यादा थप्पड़ मेरे पेड़ पे चढ़ने की वजह से खाए। अमरूद नीचे लाई कि नहीं, अमरूद छोड़ दिया? अमरूद तो गिर गया ना हाथ से, वो तो नीचे गिर गया। श्वेता नहीं खाएगी। You're like my daughter श्वेता। भी when we come to India, मेरे जो in-laws के घर में बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है। She like to get डंडा लेके छत पे से अमरूद गिरा। Oh, okay. So when you step into heaven, what would you like to have God say to you? What would you like to hear God say to you? सबसे पहले पूछूंगी हेवन में आने का रूल है क्या? वापस बोलिए। आप हेवन में आने के आपके रूल्स क्या हैं? किस बेसिस पे आप हेवन में बुलाते हो? गुड बेसिस पे आप हेवन पे बुलाते हो? गुड वन। जो आपको मिठाइयाँ, पेड़े और ये है, या जो अच्छे काम करता है, या जो सहता है, या जो मतलब क्या है रूल्स पे कि ये करोगे तो आप हेवन जाओगे, ये करोगे? जो नीचे दुनिया में लोग मानते हैं वो सच है कि आपके कोई और रूल्स हैं? प्लीज मुझे बताओ। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है एग्जैक्टली? हाँ, क्राइटेरिया क्या है हेवन में आने के? गुड आंसर। What's your hidden talent that nobody knows? हमने इतनी बातें कर ली हैं, बट एक हिडन टैलेंट जो हमें भी नहीं पता और हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता। हिडन टैलेंट तो मुझ में कुछ भी नहीं है, पर एक चीज मैं बता सकती हूँ जो लोगों ने मुझे बहुत बार बोला है कि मैं पता नहीं ये टैलेंट है कि नहीं है, मैं रात भर जाग लूं, मैं 3 दिन जाग लूं, मैं 4 दिन जाग लूं, लेकिन मुझे देखकर कोई बोल नहीं सकता कि इतने दिन जागी है या इतने टाइम तक जागी है या इतने जागने के बावजूद भी आप मुझे 20 पेजेस के लाइंस दो, मैं एक बार पढ़ के I can do one take scene. Wow. So I think that's the talent I have. I think that's the only thing I can do, and this is what I get a lot of compliments for. So that's why I feel कि शायद कोई और नहीं कर पाता होगा, तभी मुझे इतने compliments मिलते हैं. That's amazing. मतलब rectification में number 1. Completely. अगर आप टेलीविजन में हो और डेली सोप में हो तो ये आपका बिगेस्ट टैलेंट है कि आपको लाइन याद होते हैं, वो भी एक बार पढ़ने में, तो भाई आप बहुत ही टैलेंटेड हो। वो तो आप हैं ही, वो तो हमें पता है। लाइन याद होते हैं, कैसे होते हैं वो देखते, मतलब क्या होता है उसके बाद पता नहीं। काम करना और जागना और फिर भी इतने फ्रेश एंड गॉर्जियस लगना, अनबिलीवेबल। मुझे विश्वास ही गॉर्जियस लगना तो मेकअप आर्टिस्ट है, माय मेकअप आर्टिस्ट इज वेरी गुड, ही हैज बीन वर्किंग विद मी सिंस 20 years, so whatever I look, it is because of him, because he does a very great job, and my hairstylist. So I look gorgeous because of them. If I at all look gorgeous, then the credit goes to them. But yeah, the energy that I have, that is God gifted. Thank you God. God's very. Features अच्छे हो तो makeup artist gorgeous बना सकता है ना, तो features तो अच्छे होने चाहिए. You're beautiful. That's why you look extra. That with makeup it just enhances your beauty. So अच्छा, my next question. अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही मील खा सकती और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो कौन सा खाना होता? सैलेड्स। सैलेड्स? हाँ, क्योंकि फिर मुझे कहीं भी मिल जाता ना। खेतों में मिल जाता, शहरों में मिल जाता, मैं कहीं भी खा सकती थी उसे। फिर मुझे कुक नहीं करना, कोई चीज बनाने के लिए आपको कई चीजों की जरूरत होती है आग के साथ। आपको you need a fire, then you need masala, then you need namak, or you need shakkar, you need so many things to cook something. And if you go for a raw salad, you can get it from anywhere. अंजलि तो फंस गए, हम लोगों की फेवरेट तो बिरयानी है। अभी तो श्वेता इतनी फिट, और तुम तो सोमी रहने दो, साइज 0। कद्दू रहने दो, प्लीज रहने दो बिरयानी। एक महीने। अच्छा श्वेता, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक सोमी के पास एक और सवाल है रैपिड फायर के लिए। आप हमें जाते जाते हमारे ऑडियंस को, जस्ट कॉन्वर्सेशन के ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जस्ट कॉन्वर्सेशन के, पता है जब मैं ऑडियंस थी, जब मुझे नहीं पता था कि मैं
आपके शो पे कभी आऊंगी, या आप लोग मुझे कभी इतना वर्थ समझेंगे कि मैं आपके शो पे आ पाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. हम तो आपके आभारी हैं उल्टा. जब मैं आपके शोज देखती थी ना, जब मैं ऐसा लगता था, तो मुझे कई बार ऐसा फील होता था कि सेलिब्रिटीज, ठीक है, सिर्फ सेलिब्रिटीज नहीं, मुझे वो लोग भी देखने होते थे जो जो लाइफ में जा चुके हैं, जिनको लगता है कि उन्हें बाहर आके बोलना चाहिए. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अगर आप में से कोई, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, शायद मुझे नहीं पता ऐसे लोग हैं दुनिया में, आपको नहीं पता है ऐसे लोग हैं दुनिया में, बट आई थिंक आई वांट टू tell all those audience there who are watching just a conversation to find if they have some lady around, if they have somebody around, to let Somi and No More Tears and Anjali know that there is a lady who needs help, or she has a story but she's not famous. She needs to come to your show and tell people how she's struggling, okay? Because that is very inspiring. That it is. You're speaking exactly. ये हमारा concept है. हमारा concept है celebrity or human rights activists, victims of domestic violence, victims of human trafficking. ये सब हमारा पूरा concept है. बिल्कुल. All those people who know that there is somebody right next to you, whether a lady or a male or whoever who you think is a hero in their own ways, please tell Somi and tell Anjali, get in touch with them. Do you know where and how? And let us meet those people, those real heroes who are there out there in the country, in the world. And well said. Yeah. Well said. Thank you. But that is our concept. You actually nailed it exactly. That's our mission. That's exactly our mission. कि सिर्फ celebrities नहीं, मैं आपको उसकी जसरूप सिंह एक बच्ची है जो 18 साल की, उसकी मैं आपको एपिसोड भेजूंगी जो हमने अंजलि ने और मैंने की थी, बहुत अच्छी थी, और 2-3 और लोगों की भी भेजूंगी जो हमने की थी. We have on our show already, and we are looking forward to have many more achievers like that. 100%. Thank you so much, Somi. I hope आपका just a conversation एक बहुत बड़ा शो हो, आप बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को हेल्प कर पाए, आपके No More Tears में वाकई ऐसे लोग जुड़े और आप सच में सबके No More Tears कर दें लाइफ में. And God bless you, Somi and Anjali. You guys are doing such a wonderful and such a soulful work that I'm so impressed. I'm so proud of you. कभी कोई जरूरत हो मुझसे जरूर बताना. आपने आके बहुत, we're so happy. I have no words. We're so happy. But okay, so my last question for you is your favorite actress and your favorite actor, Bollywood. Favorite actress and favorite actor. Okay, तो Bollywood में favorite, आजकल के तो favorite actor मेरे ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. रणवीर सिंह is doing a great job because I think he's really versatile and I like watching it. मेरे लिए तो सच बताऊं तो सोमी जिस फिल्म में जो अच्छा कर जाता है ना, वो मेरी फिल्म फेवरेट हो जाती है. एक्टर्स पे मैं थोड़ा ध्यान कम देती हूँ, बट आजकल मैं रियलाइज कर रही हूँ कि मैं रणवीर सिंह की फिल्में बहुत ज्यादा देखती हूँ. So I like him. And दूसरी जो मेरी फेवरेट होंगी वो है, आजकल मुझे आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती है, तो शायद. So cute. She's a good actor, very good actor. She's so cute, very cute girl. Very cute and very good. अभी जो उनकी ये फिल्म आ रही है, मैं नाम हमेशा which is a movie? हाँ, गंगूबाई. How? What a beautiful. You've seen the trailer? She's really good in it. So yeah, I think like that. I also like Taapsee because I saw Thappad. I don't know if you saw Thappad. Yeah, I saw Thappad. It was a very good concept. I liked the movie. Ending yes. अच्छी थी. सोचिए 10 साल पहले ऐसे एंडिंग कभी हो सकती थी? कभी भी नहीं हो सकती थी. लोग सोचते नहीं, लोग कहते थप्पड़ तो उनको लगता ही नहीं कुछ. अरे एक आध थप्पड़ मार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं. उनको ये लगता है पर क्यों मार दे भाई? हाँ, exactly. But with all of I mean, with the bottom of our hearts, thank you so much for giving us your time and for being so honest. और आपकी ऑनेस्टी से मेरे भी जाग उठी सोमी अली. मैंने भी कुछ बोल दिया, सारा कुछ बोल दिया, पूरी राम कहानी बोल दी. तो आपने मुझे हौसला दिया और मेरी आवाज जो है जाग गई. तो बहुत बहुत धन्यवाद उसका. Thank you so much. Thank you.